Hello everyone, myself Arvid Mishra and I am back with another aviation video. This time I have come up with module 6 material and hardware, and the topic which I am going to share with you that is corrosion, that is submodule 6.4, and I am going to prepare 5 to 6 video on this particular topic, as this is huge submodule I can say, because there will be the topic like what is corrosion, how it occurs, what are the preventive measures, then forms of corrosion, classification of corrosion. So I have split it topic in few videos. So I will be covering at least 5 to 6 video for the whole topic, and I have covered also DGCA paper questions in my slides. So whatever point I am mentioning over there, that I have put a star mark on that particular point, you must refer that point. And also if you find some other question from paper, previous exam paper, you can post in a comment box. I will be trying my level best to provide the answer for the same. But already I have mentioned many of the point from different books in my slide, so kindly refer all those points. And I will say that watch all the videos completely, so that you will be getting good idea regarding the topic. Let's start with the session. So let's get started. अब बात करते हैं डिसिमिलर मेटल कॉरोजन यानी कि गैल्वेनिक कॉरोजन की, जो कि दो डिफरेंट मेटल के बीच में हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट और सम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये जो कॉरोजन है ये भी एक तरीके से जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल कॉरोजन पढ़ा था उसके ही कुछ इक्वल बैठता है। इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव पिटिंग डैमेज, ये अपने को याद रखना है कि इसमें पिटिंग डैमेज यानी कि छोटे छोटे होल्स जो हैं वो जनरली फॉलो हो जाए, मतलब बन जाते हैं। Now, extensive pitting damage may result from contact between dissimilar metal part in the presence of a conductor. While surface corrosion may or may not be taking place, a galvanic action not unlike यानी कि similar to electroplating occur at the point or the area of the contact where the insulation between the surface has broken down or been omitted. कहने का मतलब है ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड की तरह है। अगर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि जो 4 एसेंशियल कंडीशन है, एनोड, कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड जो मेटल का मेटल से कांटेक्ट है, एक भी चीज़ ब्रेक होती है तो ये कॉरोजन प्रमोट हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। हमने फिर एक और एग्जांपल देखिए, पेंट की कोटिंग जो है इलेक्ट्रोलाइट और मेटल के कांटेक्ट को बचा रही है। अगर वो पेंट की कोटिंग हट जाए तो इलेक्ट्रोलाइट मेटल के कांटेक्ट में आएगा और कॉरोजन प्रमोट होगा। तो ये सेकंड पॉइंट उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, जो इंसुलेशन यानी कि जो एक लेयर है दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की, वो अगर ब्रेक हो गई तो यहाँ पे कॉरोजन अकर हो जाएगा। This electrochemical attack can be very serious because in many instances the action is taking place out of sight and the only way to detect it prior to structure failure is by disassembly and inspection. तो ये जो टाइप का कोरोजन है ये बहुत ज़्यादा सीरियस और क्रिटिकल होता है। इसको डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आपको जो भी कंपोनेंट है उसे डिसअसेंबल करके और इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। Further points, the contamination of a metal surface by mechanical mean can also induce dissimilar मेटल कॉरोजन। तो जो अगर मैकेनिकल यानी कि फिजिकल एब्रेशन से अगर हम उस कॉरोजन को निकालने की कोशिश करते हैं तो भी ये कॉरोजन प्रमोट होता है। जैसे कि द इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टील क्लीनिंग प्रोडक्ट सच एज स्टील वूल और अ स्टील वायर ब्रश ऑन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कैन फोर्स स्मॉल पीसेस ऑफ स्टील इनटू द मेटल बीइंग क्लीन्ड which will then further corrode and ruin the adjoining surfaces। यानी कि अगर हमने स्टील वूल का या स्टील वायर ब्रश को एल्युमिनियम या मैग्नीशियम के प्रोडक्ट पे यूज़ किया तो अब क्या होगा, ये दो डिफरेंट मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। हो सकता है जो ब्रश है या जो हम वूल यूज़ कर रहे हैं उससे कुछ पीसेस इसमें रह जाएं और वो क्या करेंगे, कॉरोजन को फर्दर प्रमोट कर देंगे।
Carefully monitor the use of non-woven abrasive pad so that the pad used on one type of metal are not used again on a different metal surface. ये भी हमें ध्यान रखना है, नॉन वोवन एब्रेसिव पैड जो हैं वो भी हम अगर एक बार यूज़ करें तो उन्हें रीयूज़ नहीं करना है, उन्हें हटा देना है, मतलब एक बार यूज़ करके उन्हें वापस से यूज़ नहीं करना है. सो दैट पैड यूज ऑन अ वन टाइप ऑफ मेटल आर नॉट यूज अगेन ऑन अ डिफरेंट मेटल सरफेस. एक मेटल के बाद दूसरे मेटल पे कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है. Corrosion caused by galvanic action is the result of contact between the two unlike metal. तो ये एक ऐसा है दो डिसिमिलर मेटल के बीच में corrosion पैदा होने को हम लोग डिसिमिलर मेटल कॉरोजन कहते हैं. यहाँ पे ध्यान रखने की बात इस स्लाइड में ये थी कि अगर आप इवन क्लीनिंग के लिए कोई डिफरेंट मेटल यूज़ कर रहे हो, उसका ब्रश यूज़ कर रहे हो, तो ये कॉरोजन हो जाता है अगर उसके पार्टिकल रह जाते हैं. और जो पैड है, एब्रेसिव पैड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी रीयूज़ नहीं करने, एक मेटल पे यूज़ करें, दूसरे मेटल पे वो सेम पैड को यूज़ नहीं करना है. उसके बाद अब बात करते हैं इंटरग्रैनुलर कॉरोजन की. तो ये ग्रेन बाउंड्री के अलोंग कॉरोजन होता है, ठीक है. तो बात करते हैं पहले पॉइंट पे. दिस टाइप ऑफ कॉरोजन इज एन अटैक अलोंग द ग्रेन बाउंड्रीज ऑफ एन एलॉय एंड कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द एलॉय स्ट्रक्चर. तो इसका मेन रीज़न यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, पहला जो अलोंग द ग्रेन बाउंड्री ऑफ द एलॉय ये कॉरोजन होता है. दूसरा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द एलॉय स्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्रेन्स हैं उनमें यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं प्रेजेंट है, वो यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है, तो ये कॉरोजन जनरली आता है. Aluminium alloys, some stainless steel are popularly susceptible to this type of electrochemical attack. Aluminium alloy और stainless steel में generally ये corrosion देखने को मिलता है. Lack of uniformity is caused by change that occur in alloy during heating, cooling during the materials manufacturing process. यानी कि हीट ट्रीटमेंट के वक्त जो ग्रेन्स में डिफेक्ट आ जाता है, या फिर आप ये कह लीजिए इस थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग कि प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर नहीं रहा और ये कॉरोजन हो गया, ठीक है. तो इंटरग्रैनुलर कॉरोजन में एग्जिस्ट विदाउट विजिबल सरफेस एविडेंस. कई बार ये कॉरोजन भी आपको इजीली डिटेक्ट नहीं होता, तो आप विजिबल सरफेस कुछ इसका मतलब इंडिकेशन नहीं आते कुछ कुछ केस में. तो इस स्लाइड में हमने बात की इंटरग्रैनुलर कॉरोजन क्या है. ये जनरली हीट, एक तो बेसिक पॉइंट ये याद रख लेना है अपने को कि ये ग्रेन बाउंड्रीज के अलॉन्ग होता है एलॉय में, और दूसरा ये याद करते हैं अगर ग्रेन्स बाउंड्री में यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो ये कॉरोजन बढ़ता है. और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि ये क्यों हो सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग जब मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही अगर प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये कॉरोजन आ सकता है. वेरी सीवियर इंटरग्रैनुलर कॉरोजन में समटाइम कॉज द सरफेस ऑफ अ मेटल टू एक्सफोलिएट. हम हालांकि एक्सफोलिएशन कॉरोजन के बारे में बात कर चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है उससे रिलेटेड. वेरी सीवियर इंटरग्रैनुलर कॉरोजन, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा इंटरग्रैनुलर मतलब सीवियर इंटरग्रैनुलर कॉरोजन होता है तो उसकी वजह से मेटल एक्सफोलिएट हो जाता है, यानी कि प्लेटिंग उखड़ने लगती है, धीरे धीरे खराब होने लगती है. दिस इज द लिफ्टिंग और फ्लेकिंग ऑफ अ मेटल एट सरफेस ड्यू टू डीलैमिनेशन ऑफ अ ग्रेन बाउंड्री कॉज बाय द प्रेशर ऑफ द कॉरोजन रेसिडुअल प्रोडक्ट बिल्डअप. तो एक्सफोलिएशन हमने पढ़ा ही था पहले भी, तो उसमें क्या बताया जाता है, एक्सफोलिएशन मतलब लिफ्टिंग और फ्लेकिंग ऑफ अ मेटल एट द सरफेस. ये ग्रेन बाउंड्रीज में जो डीलैमिनेशन हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो डीलैमिनेशन हुआ है, उसकी वजह से कॉरोजन प्रोडक्ट चाहे अब जो बिल्ड हो गया उसकी वजह से सरफेस के ऊपर की लेयर हट रही है, ठीक है. दिस टाइप ऑफ कॉरोजन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन इट्स इनिशियल स्टेज. ये पॉइंट आपको याद रखना है इससे आप पॉइंट ऑफ व्यू से कि विच टाइप ऑफ कॉरोजन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इन इनिशियल स्टेज इज नोन एज इंटरग्रैनुलर कॉरोजन. ये बहुत डिफिकल्ट मतलब इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है इनिशियल स्टेजेस में. एक्सट्रूडेड कंपोनेंट जैसे कि स्पार can be subjected to such type of corrosion. extruded component, again extrusion is a forming process जिसमें hot blood को आप एक फोर्स से रीशेप देते हो, कोई शेप प्रोड्यूस करते हैं. now ultrasonic and eddy current inspection method are being यूज विद ग्रेट डील ऑफ सक्सेस. तो इस टाइप के कॉरोजन को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक और एडी करंट इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. इस स्लाइड पे आपको थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट दिमाग में रखना है. देन इंटरग्रैनुलर कॉरोजन में इंटरक्रिस्टलाइन कॉरोजन इज डिटेक्टेड बाय एक्सरे
एंड ऑलमोस्ट सेम एज द एक्सफोलिएशन कोरोजन। ये इंटरक्रिस्टलाइन जो कोरोजन है वो एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं और ये भी एक्सफोलिएशन कोरोजन की तरह सेम है। सम टाइम इंटरग्रेनुलर कोरोजन इज कॉज बाय इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट। ये पॉइंट मैं पिछली स्लाइड में भी अभी कवर कर चुका। ये कोरोजन इम्प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट की वजह से हो जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही ये कोरोजन क्रिएट हो सकता है। इट में हैव नो विजुअल इंडिकेशन, कैन बी रिकॉग्नाइज बाय ग्रे पाउडर डिपॉजिट ऑन द सरफेस। तो विजुअल सरफेस इंडिकेशन भले ही ना हो, लेकिन ग्रे पाउडर डिपॉजिट अगर सरफेस पे दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इंटरग्रेनुलर कोरोजन आ रहा है। इंटरग्रेनुलर कोरोजन इन स्ट्रक्चर एल्युमिनियम पार्ट में बी डिटेक्टेड बाय वाइट पाउडरी सब्सटेंस। तो यहाँ पे लास्ट के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विजुअल सरफेस इंडिकेशन जनरली ग्रे पाउडर डिपॉजिट देंगे, लेकिन अगर एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर पार्ट पे ये कोरोजन डिटेक्ट कर रहे हैं तो आपको वाइट पाउडरी सब्सटेंस दिखेगा और उससे आप पता लगा सकते हैं कि इंटरग्रेनुलर कोरोजन हो रहा है। और आफ्टर फाइंडिंग इंटरग्रेनुलर कोरोजन रिप्लेस द कंपाउंड बिकॉज इट कैन कॉज कैंसर ऑफ अ मेटल। तो एक तरीके से इसको कैंसर से रिलेट किया गया है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। सो थैंक यू, दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। अगला वीडियो में मैं फर्दर फॉर्म ऑफ कोरोजन पे बात करूँगा। थैंक यू।